خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اس کی وفاداری ہمارے ساتھ۔ آمین۔ وہ الہوں پر شاہ عظیم ہے، وہ وفادار ہے، وہ زندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور ہم اس کے پیروکار ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ رسولوں کے اعمال اس کا 26واں باب اور اس کی 9 تا 19 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ 9ویں آیت سے میں آپ کے سامنے اسے پڑھوں گا۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اسے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ اسے بغور سنیں اور سنجیدگی سے آج کا پیغام سنیں۔ یہ بہت خاص بات ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسوع ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے، چنانچہ میں نے یروشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا، اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا، اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا، بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا۔ اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا، تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد آ چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند، تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ آمین۔ پولس رسول فریسیوں کے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ صدوقی اور فریسی بنی اسرائیل کے اندر 2 بڑے طبقے تھے جو شریعت کی پیروی کرتے تھے، شریعت کو مانتے تھے، لیکن فریسی جو تھے ان میں زیادہ مستند مانے جاتے تھے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ زیادہ کٹر ہیں اپنے مذہب کو لے کر، یہ شریعت کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، اور پولس کا تعلق ان ہی لوگوں میں سے تھا۔ اور یہ طبقہ جو تھا یہ اپنے آپ کو بڑا معتبر مانتا تھا، دوسرے طبقات کو یہ اپنے سے کم درجہ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے زیادہ قریبی ہیں، ہم خدا کے احکامات کو زیادہ مانتے ہیں، ہم خدا کے قوانین کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہمیں خدا کے قوانین اور احکامات کی زیادہ پہچان ہے۔ اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور فرقہ جو بالکل ہی ان سے مختلف تعلیم دیتا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مسیحی لوگ تھے، یہ اپنے ہی یہودی بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں سے اختلاف رکھتا تھا، لیکن جب یہ فرقہ اٹھا تو یہ شدت سے اس فرقے کا مخالف ہو گیا، اور اس نے مسیحیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس نے اثر سوخ والے لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو پکڑوانا شروع کر دیا، انہیں ہیکل کے اندر لے کر آتا، انہیں وہاں پر ذلیل کیا جاتا، انہیں وہاں پر ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا، ان کے ایمان کی تذلیل کی جاتی، اور انہیں اس بات پر اکسایا جاتا کہ وہ اپنے ایمان کا انکار کر دیں۔ یہاں پر یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس نے کتنے لوگوں کو مسیح سے گمراہ کیا، میں سمجھتا ہوں شاید یہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے مسیحیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، انہیں ان کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے بہت سے لوگوں کو اذیتیں دی، بہت سے لوگوں کو مروانے کی کوشش کی، لیکن تو بھی اس کی نفرت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اپنے شہر میں تو یہ کام کرتا ہی تھا، پھر اس نے آفیشل لیول پر جا کر ان سے اجازت نامے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے دوسرے شہروں میں بھی جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں سے مسیحیوں کو اریسٹ کر کے یہاں پر لاؤں اور انہیں یہاں پر سزائیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے اس ایمان سے پھر جائیں، اپنے اس ایمان کا انکار کر دیں۔ لیکن اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا کہ جب میں وہ پروانے لے کر دوسرے شہروں کی طرف جا رہا تھا تو دمشق کی راہ پر میری ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوئی، اور وہ کہتا کہ میں نے نور چمکتا ہوا دیکھا سورج سے بھی زیادہ۔ آمین۔ سورج کی جتنی روشنی ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس نے روشنی کو چمکتے ہوئے دیکھا، اور یہ گر پڑا وہاں پر، اور اس نے آواز سنی، اور آواز یہ تھی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے
क्यों सताता है। और खुदाम यीशु मसीह ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी। खुदाम यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुला लिया है और तू अंजील की बशारत देगा, तू गैर कौमों के अंदर जाएगा, गैर कौमों में जाकर मेरे कलाम की मुनादी करेगा, उन्हें अंधेरे में से निकालेगा। 5 बातें हैं जो खुदाम यीशु मसीह ने उससे कही कि तू करेगा। जो मैसेज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो पौलुस रसूल का वो इकरार है जिसने बादशाह के सामने किया कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। यह शख्स मसीह को नहीं जानता था, मसीह की बाबत तालीम इसके पास मौजूद थी, मसीह तालीम से भी ये वाकिफ था क्योंकि ये आलिम फाजल आदमी था, ये तालीम याफ्ता शख्स था, गमलीएल से इसने तालीम पाई थी और ये मुख्तलिफ मज़ाहब को पढ़ता रहा था और इसने इस नए फिरके की भी तालीम को पढ़ा और इस नए फिरके की तालीम को रिजेक्ट कर दिया और उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लेकिन बराह रास्त खुदाम यीशु मसीह ने इंटरफेयर किया क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसको कोई शख्स इल्म से नहीं जीत सकता। पौलुस रसूल ऐसा अड़ियल आदमी था जिस शख्स के अंदर इल्म का घमंड हो, इल्म का गुरूर हो, उसको ज़ेर करना आसान नहीं होता। खुदाम यीशु मसीह बराह रास्त उसके सामने आ गए और खुदाम यीशु मसीह ने उसे चैलेंज किया और जब उसे चैलेंज किया तो वो खड़ा नहीं रह सका, घोड़े से गिर गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये पिछले चैप्टर्स के अंदर लिखा है। और फिर खुदाम यीशु मसीह ने एक शख्स की रहनुमाई की, एक ईमानदार की, और उसे कहा कि तू जाकर उसके लिए दुआ कर और उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो मसीह की खिदमत करने लगा। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। पौलुस रसूल एक बादशाह के सामने हाजिर है, पूरी कैबिनेट बैठी है, पूरी काबीना बैठी है और यहां पर पौलुस रसूल खुदाम यीशु मसीह की मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि खुदाम यीशु मसीह के साथ खड़ा है, खुदाम यीशु मसीह की तालीमात का प्रचार कर रहा है। फर्क है, ये पौलुस वो पौलुस नहीं है जो दमिश्क की राह पर जा रहा था मसीहियों को अरेस्ट करने के लिए, उनके मुकदमे को झूठा साबित करने के लिए। यहां पर पौलुस रसूल खुदाम यीशु मसीह का मुकदमा लड़ने के लिए खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। पौलुस रसूल की हिस्ट्री जो है उसकी लाइफ की बताती है कि इसके बाद पौलुस रसूल ने मुड़कर वापस नहीं देखा। इस शख्स ने मसीह के लिए बड़े दुख सहे, इस शख्स ने इनकलाबी खिदमत की है, ऐसी खिदमत जिसके वसीले से अनगिनत कलीसियाएं बनी, यूरोप के अंदर खुदा का कलाम चला गया। और हिस्टोरियंस बताते हैं कि तकरीबन 6000 मील इस शख्स ने पैदल सफर किया खुदा की खिदमत करने के लिए, अंजील की मनादी की खिदमत करने के लिए। इसने 6000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल सफर किया और इसको बैंत लगाए गए, इसकी रीढ़ की हड्डी हिल चुकी थी। बैंत लगने से एक दफा अगर किसी को बैंत लग जाते थे, सिल पर उल्टा उल्टाया जाता था, पत्थर की सिल पर, और उसके ऊपर 39 बैंत मारे जाते थे। उन बैंतों के लगने से किसी शख्स के अंदर दोबारा इतनी सकत नहीं रहती थी कि वो सही तरह से चल सके। इसको कोड़े भी लगाए गए, इसको बैंत भी लगाए गए और ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा ये प्रोसीजर दोहराया गया इसकी लाइफ के अंदर। बार बार इसे अरेस्ट किया गया, बार बार इसे सजाएं दी गई, बार बार इसे डराया और धमकाया गया कि तू मसीह की मनादी ना कर, तू मसीह की खिदमत ना कर, तू अंजील की बिशारत ना दे। लेकिन यह शख्स बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ता रहा, कलाम सुनाता रहा, यीशु के लिए दुख सहता रहा और आज ये इस मुकाम पर पहुंच गया कि इसे अदालत के अंदर इस पर सजा का हुक्म है, इसे मौत के लिए लाया गया है, इसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन यह शख्स यहां पर अपनी सफाई देने की बजाय मसीह की बिशारत देता है और वो बादशाह से कहता है कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल अपने ईमान लाने के दिन को याद करता है। दमिश्क की राह पर खुदाम यीशु मसीह के साथ जो मुलाकात उसकी हुई थी, ये इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरी और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या आज हमें वो दिन याद है जिस दिन हमने मसीह को अपना आप दिया था, जिस दिन हमने मसीह के हुजूर सरेंडर किया था, जिस दिन हमने मसीह से कहा था कि खुदावंद मेरी जिंदगी तू ले ले, मैं तेरे लिए जिंदगी बसर करूंगा? क्या आज हमें वो दिन याद है? क्या आज हम उस दिन को याद करते हुए, क्या आज हम उस अहद के अंदर कायम हैं? क्या हमें याद है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह से क्या अहद व पैमा किए थे? पौलुस रसूल मौत के दोराहे पर खड़ा है, सियासतदान उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, हुकूमत उसके खिलाफ है, उसकी अपनी कौम के यहूदी लोग उसके खिलाफ हैं, मसीही लोग जो हैं वो किसी हद तक इसकी फेवर में थे और अभी भी बहुत से जगहों के अंदर इसके ताल्लुक से शक और शुबात पाए जाते थे कि क्या पौलुस वाकई मसीह का खादम है। बहुत सी बातों के अंदर उलझा हुआ यह शख्स, अपनों और गैरों से ठुकराया हुआ यह शख्स मसीह की मोहब्बत को छोड़ता नहीं है, उस रोया को याद रखता है। इसने हर एक कीमत चुकाई, हाथों से मेहनत की है, इसने किसी से पैसे नहीं मांगे। मैं समझता हूं पौलुस रसूल ने जिस तरह की खिदमत की, अगर वो लोगों से डिमांड करता कि मुझे पैसे दिए जाएं तो लोगों ने अंबार लगा देने थे पैसों, क्योंकि जिस शख्स के कपड़े को छू देने से बदबू निकल जाए। दूसरे शहरों से लोग आते थे कि भाई आप सिर्फ इस रुमाल के ऊपर हाथ रख, अगर आपने हाथ रख दिया तो मुझे पता है मेरी बेटी आजाद हो जाएगी, मेरा बाप आजाद हो जाएगा,
मेरी बहन आजाद हो जाएगी। उस शख्स के लिए ये कहना कितना आसान है कि आप थोड़ा सा हदिया लाएं। इसने अगर हदिया मांगा भी तो कलीसियाओं को दिया, अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, और ये मुसाफिराना जिंदगी बसर करता रहा। और इसने टोटली तौर पर अपने आप को मसीह के लिए वक्फ किया, और ये बादशाह के सामने इस बात का इकरार करता है कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल अपने खतूत के अंदर तालीम देता है कि कौन सी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? क्या भूख, काल, वबा, तंगी, नंगापन, फरिश्ते, हुकूमतें? कौन सी चीज? अगर मैंने और आपने मसीह के साथ चलने का इरादा कर लिया है, अहद कर लिया है, तो फिर क्या कोई चीज हमें मसीह से दूर ले जा सकती है? लेकिन अफसोस की बात है कि आज की कलीसिया के लिए ये चीजें तो बहुत बड़ी हैं। हम तो छोटी छोटी चीजों से मसीह से दूर चले जाते हैं। अफसोसनाक बात है हमारे लिए। बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं, बेटी पैदा हो गई है, चर्च आना छोड़ दिया है, अपने सेहत को भूल गए हैं जो खुदा के साथ बांधा था कि खुदावंद मैंने अपनी जिंदगी तुझे दे दी। जब अपनी जिंदगी दे दी है तो वो चाहे बेटा दे या बेटी दे, फिर तो सब कुछ उसी का। लेकिन पहले भी बेटी थी, दोबारा भी बेटी पैदा हो गई, कहते हैं अब खुदा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया। अब खुदा कौन और हम कौन? कहते हैं कि इसकी टांगे इस तरह से टेढ़ी हो चुकी थी, बाहर की तरफ निकल गई थी, और ये छोटे कद का आदमी था, और इसकी कमर के अंदर इतनी तकलीफ रहती थी, इसकी आंखें खराब हो चुकी थी। मुख्तलिफ मौसमों के अंदर जाकर जाड़ों के अंदर ये सफर करता था और बहरी जहाजों में सफर करता था। इसकी आंखों के अंदर मसला था, सर के अंदर दर्द रहता था, लेकिन तो भी ये इन तमाम हालतों को नजरअंदाज करके ये मसीह की मनादी के लिए निकलता था, और इसने बड़ी बड़ी शैतानी कुव्वतों का मुकाबला किया सिर्फ मसीह के फजल से। आज की कलीसिया को पौलुस रसूल का किरदार, पौलुस रसूल की लाइफ चैलेंज करती है। हमें आज उठने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान की कलीसिया में मैं समझता हूं इंसानी एतबार से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। पाकिस्तानी कलीसिया की निस्फ सदी जो है, गुज़िश्ता निस्फ सदी, उसके अंदर जो खिदमत की गई, उसके अंदर मोतबर नाम पादरी इस्कियल सरोश का है। लेकिन कल रात खुदावंद ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। वो खिदमत करके आ रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो खुदावंद के पास चले गए, और उनके कुछ दीगर साथी हैं वो सीरियस हालत में। और लास्ट मुलाकात जो हमारी उनके साथ हुई थी करीब 1.5-2 साल पहले, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 74 बरस है, और 74 बरस की उम्र के बावजूद हमने देखा कि उनकी गुफ्तगू में बड़ी ताकत थी, जोश था उनके अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे पट्टे अब भी मजबूत हैं और मैं खुदा की खिदमत के लिए पेश हूं। और मुझे याद है 2000 में जब मैं खुदा के पास आया 99 में, तो पादी साहब के साथ मैं मुंसलिक हुआ खिदमत में, तो पहली दफा भाई जस्टिन मुझे वहां पर लेकर गए थे पादी साहब के चर्च में सन 2000 में। तो इन्होंने मुझे उनसे मुतारिफ करवाया और इन्होंने कहा कि जी ये नौजवान है, इसने मसीह को कबूल किया है और ये मेरे साथ खिदमत में नया नया चलना शुरू हुआ है। तो पादी साहब ने कहा फिर तो अदली दुआ बनती, अदली दुआ करनी चाहिए। और मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ पर मेरे सीने पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे उस तरह से दुआ करते थे कि पूरी तरह से हिला देते थे, और उन्होंने मुझे हिलाया, झंझोड़ा और जबरदस्त दुआ की उन्होंने मेरे लिए, और उन्होंने मुझे बरकत दी कि खुदावंद इस नौजवान को तो इस्तेमाल करना। मसीही खादिमीन जो हैं ये समझ लें मशल लेकर भागने वाले। एक टाइम तक उसने मशल लेकर भागना है, उसके बाद उसने मशल अगले को पकड़ा देनी और उसका सफर खत्म हो जाना है। आज वो मशल जो पादरी हिस्कियल के हाथ में थी, खुदावंद ने किसी और के हाथ में थमा दी। ये सफर खत्म नहीं होगा, शमा जलती रहती है, परवाने जल के खत्म हो जाते हैं। मसीह की मोहब्बत की शमा हमारे दिलों में रोशन रहती है हमारी मरने के दिन तक। तो मेरा और आपका ये जो सफर है, मेरा और आपका जो अहद है, ये मौत तक का अहद है। ये ऐसा नहीं है कि सर्दी आ गई तो अहद टूट गया, गर्मी आ गई तो अहद टूट गया, गैस ना आई तो अहद टूट गया, बिजली ना आई तो अहद टूट गया, शादी आ गई तो अहद टूट गया, सालगिरह आई तो अहद टूट गया, बुखार हो गया तो अहद टूट गया, छोटी छोटी बातों से अहद टूट गया। ये तो मौत तक का अहद है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल कहता है मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्लीब उठानी होगी। आज कलीसिया के अंदर रहते हुए, मसीही ईमानदार होते हुए, हम अपनी जिंदगी के अंदर आसाइश और आसानियां ढूंढ रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर मसीह के पास आने का मकसद ही महज सिर्फ और सिर्फ ये रह गया, किस तरह हमने बरकत लेनी है, किस तरह हमने जॉब के ऊपर तरक्की हासिल करनी है। पादरी साहब दुआ करें कि मेरी जॉब इससे भी अच्छी हो जाए, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें कि मेरा वीजा लग जाए, पादरी साहब मेरे लिए ये दुआ करें, पादरी साहब मेरे लिए ये दुआ करें, ये करें, ये करें, ये करें। और वो सारी बातें अपनी लाइफ को आसान करने के लिए। पादरी साहब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मोटरसाइकिल पे पूरे नहीं आते, हम कहते हैं कि अब गाड़ी ले। भाई अच्छी बात है, गाड़ी खुदा आपको देगा, लेकिन मसीह के साथ चलने के लिए और मसीह के साथ अपने ईमान का इकरार करने के लिए भी तो कोई बात होनी चाहिए। उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। पौलुस रसूल ने मनादी की, लेकिन ऐसी मनादी की जो असर अंदाज होने वाली मनादी थी। ऐसी मनादी नहीं कि उठ के सरमन सुना दिया और बैठ गए। उसकी मनादी ने तहलका मचाया था। आज मसीहियों की जिंदगी के अंदर गवाही नहीं है, क्योंकि वो मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं, कि जिंदगी मसीह से दूर है। और ऐसे मसीही जिनको नाम नेहाद मसीही कहना चाहिए, आज कलीसियाओं के अंदर भरे हुए ऐसे पासबान हैं जो नाम नेहाद पासबान हैं। उनके मोटिव्स अपनी लाइफ को
बेहतरीन बनाना है, बाजारों में फिरना, 70-70 हजार 80-80 हजार के मोबाइल लेना, अपने बच्चों को लेके देने। पिछले दिनों में एक पादरी का बेटा मुझे मिला, उसने बताया कि जी 4,500 के मोजे पहने में मैंने। उसने फख्र से ही बात मुझे बताई और मुझे इस चीज का दुख हुआ कि इसकी कलीसिया के अंदर कई ऐसे लोग होंगे जिनके मोजे फटे हुए हैं। आज हम किस जगह पर खड़े हैं? ईमानदारों की ये असल शक्ल है जो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आती है। अगर कोई पासवान खुदा के कलाम के मुखालिफ चल रहा है तो खुदा उससे हिसाब लेगा। अगर कोई ईमानदार मसीही होते हुए मसीही तालीमात को फॉलो नहीं करता और वो एक ऐसी मसीहियत को फॉलो कर रहा है जिसको बाइबल मुकद्दस सपोर्ट नहीं करती, तो मैं समझता हूं उसे तौबा करने की जरूरत है, उसे दोबारा वापस आने की जरूरत है। इंजील जो है वो हमारी लाइफ के अंदर करती क्या है? जो मैसेज खुदाम यीशु मसीह ने उसे दिया था वो ये था कि तू उनकी आंखें खोल दे। किनकी आंखें खोल दे? दुनियादार लोगों की, उन आलिम फाजल लोगों की जो इल्म और घुमंड से भरे हुए हैं, जिनके अंदर ये सोच है। खुदाम यीशु मसीह ने भी दुआ की, ऐ आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये बात बहुत से हकीमों से छुपाई है, बच्चों पर जाहिर की। तो पौलुस रसूल को ये मैसेज दिया गया, ये खिदमत दी गई कि तू उनकी आंखें खोल दे। और दूसरी बात, उन्हें अंधेरे से रोशनी के अंदर ले। ये महज पौलुस रसूल के लिए नहीं है, तमाम ईमानदारों के लिए। क्या आज हम किसी की आंखें खोलने में कामयाब हुए हैं? अगर हमने किसी की आंखें नहीं खोली, किसी को रोशनी में नहीं लाए, तो इससे पहले हमें अपने आप से संजीदगी से सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी आंखें खुल गई? क्या मैं मसीह को जानता हूं? क्या मैं तारीकी का काम छोड़ के रोशनी में आ चुका हूं? क्या मेरा तसल्लुत शैतान पर बन चुका है? शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए। जो लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं वो शैतान के कब्जे के अंदर हैं, शैतान के इख्तियार के नीचे हैं। लेकिन जब वो तौबा करके मसीह की तरफ आते हैं तो खुदावंद के इख्तियार में आ जाते हैं। खुदावंद उन्हें अपनी अथॉरिटी देता है और फिर वो शैतान के तमाम इख्तियार के ऊपर गालिब आते हैं यीशु के नाम से। आमीन। पौलुस रसूल की यह मिनिस्ट्री थी कि वो आंखें खोले, वो लोगों को अंधेरे से रोशनी के अंदर लेकर आए, वो लोगों को शैतान के इख्तियार से निकालकर खुदावंद की तरफ लाए, ताकि मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी उन्हें मिले और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। ये मेरी और आपकी ड्यूटी है। ये 5 चीजें सबसे पहले ये हमने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। आंखें खुल जाए हमारी, है खुदावंद हमारी आंखें खुल जाए। बहुत से लोगों ने तौबा की है, लेकिन मुझे एहसास होता है बहुत से लोगों की तौबा भी डाउटफुल है। ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये संजीदा गुफ्तगू है जो हम कर रहे हैं आज। बहुत से लोगों की तौबा ऐसी तौबा है, उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं निजात याफ्ता हूं या नहीं। दुनिया के अंदर जब इस चीज के लिए सर्वे किया जाता है तो एशियाई लोगों के अंदर बहुत कम लोग ऐसे निकलते हैं जो दिलेरी से ये कहते हैं कि हाँ जी मैं निजात पा चुका हूं। यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ज्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो मसीह को नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं वो इतने सॉलिड हैं कि वो समझ लेके जैसे कोई चीज पत्थर पे लकीर कर दी जाती, वो हटते नहीं उससे। वो कहते हैं कि हाँ जी मैं मसीही हूं, मैं डेडिकेटेड क्रिश्चियन। हमारा इल्हाक आज दुनिया के साथ। आपने देखा दानियल ने जो मूरत देखी थी उसके अंदर जो पैर थे वो मिट्टी के और लोहे के थे। मिट्टी का और लोहे का क्या तालमेल है आपस में? बताएं मुझे। आप मिट्टी की एक ईंट लगा दें और एक लोहे की लगा दें तो थोड़ा सा उसे हिलाएं वो दोनों लैदा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फितरत एक दूसरे से फर्क, मिट्टी की और लोहे की। आज ईमानदार दुनिया के अंदर इस तरह से ही मर्ज हो गए हैं, भेड़ और बकरियां इस तरह से मिल गई हैं कि समझ नहीं आ रही कि भेड़ कौन है बकरी कौन। शक्ल उसकी भेड़ है, आवाज उसकी बकरी की है। शक्लो शुबाहत भेड़ की है, कारनामे उसके बकरियों जैसे हैं। चेहरा उसने रूहानी लगाया हुआ है और जो उसकी करतूतें हैं उसकी करतूतें शैतान को जलाल देने वाली। ये भयानक चेहरा है आज की कलीसिया का, और आज की कलीसिया को होश में आने की जरूरत है। हमें सख्ती से अपना मुहासबा करना है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, खुदा देना चाहता है, खुदा सबको बरकत देना चाहता है। वो तो अपना सूरज नेक और बदल दोनों पर चमकाता है, उसका फजल तो सबके लिए है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है हमने उसका फजल हासिल भी कर लिया, हमने उसके फजल से किया क्या? तोड़ों की तमसील आपको याद है? एक शख्स को तोड़े मिले 10, उसने जाकर कारोबार किया। एक को 5 मिले, वो भी निकल गए, उसने बढ़ाया, बिजनेस फैलाया। एक को मिला 1, उसने सोचा ये कहीं गिर ना जाए, कहीं मैं नुकसान ना उठा लूं। उसने गड़ा खोदा, उसको रैप किया शॉपिंग बैग के अंदर या जैसे भी उसको महफूज किया, छुपा दिया। और जब मालिक वापस आया तो उसने कहा आओ भाई अब हिसाब दो। इसको 10 मिले थे, उसने कहा जी मालिक मैंने 10 के 20 बना लिया। शाबाश, तू ईमानदार नौकर है, तू वफादार है, तू सियाना बंदा, अक्लमंद है। 5 जो थे जिसके उसने भी 10 करके दिखाए। जिसका 1 था उसने कहा मालिक मैं डरा कि कहीं मेरे से ये खो ना जाए, मैंने बड़ी ईमानदारी से छुपा के रखा है। तो उसको शाबाश मिली। मुझे और आपको फजल मिला है, मुझे और आपको अंजील की गवाही देने के लिए खुदावंद ने खड़ा किया है। हम क्या कर रहे हैं? कहीं हम उस नौकर की तरह तो नहीं जिसने सिक्का छुपाया हुआ है। हम डरते हैं आपका क्या नाम है, आप मसीही है। हमारे अंदर दिलेरी भी नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि मैं मसीही। कई लोगों ने नकली शनाख्ती कार्ड, 2 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए चर्चों के लिए। मसीह का शनाख्ती कार्ड है, यकूब मसीह फलाना। सॉरी अगर कोई है यहाँ पे, यकूब मुझे माफ कीजिए, ये नाम है, कोई भी हो सकता है, शहजाद मसीह लगा ले।
2 शहजाद हैं यहाँ पे, मैं और एक और भाई, और मोहम्मद शहजाद भी है। 2 नाम, 2 शनाख्ती कार्ड इशू कराए हुए। मुसलमानों में वो मुसलमान है और मसीहियों के अंदर वो मसीही है। तो आप बताएं कि जब वो शख्स मरेगा तो उसकी आइडेंटिटी ऊपर क्या हो? ईमान तो अपना पहले बेच चुका है, वो उसका ईमान तो कोई है नहीं, कहां जाएगा? ये वो संजीदा और सख्त सवालात हैं जो हमने अपने आप से पूछने हैं। इस तारीख दुनिया के अंदर अगर हम जिंदा हैं तो इसलिए जिंदा हैं कि हम मसीह का नूर चमकाएं, मसीह का नूर हमारे वसीले से जाहिर हो, मसीह की तालीमात हमारे वसीले से दूसरों तक पहुंचे। हम अगर मनादी नहीं कर सकते, हम अगर गवाही नहीं दे सकते, कम से कम अपना किरदार ही मसीह की तरह बना लें। ये सबसे बड़ी गवाही है। जब चोरी करने का मौका है सब चोरी करें, आप ना करें। जब झूठ बोलने का मौका है सब झूठ बोले, आप ना बोलें। जब लड़ाई का मौका है सब लड़ाई करें, आप ना लड़ें। जब हसद करने की बारी है सब हसद करें, आप ना करें। जब गुस्से की बात आए सब गुस्सा करें, आप ना करें। जब नफरत की बात आए सब नफरत करें, आप मोहब्बत करें। जब गाली गलौच हो आप दुआ दें। इतना ही कर लें, ये बहुत है। ये लोगों को हैरान कर देगा। तारीख बताती है बहुत से ईमानदार ऐसे गुजरे जिन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, इस अंदाज से कि उन्होंने बड़ी बड़ी कन्वेंशनों के अंदर कलाम सुनाए थे, उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ किया था, कुछ नहीं। उन्होंने जस्ट मसीह को अपने अंदर से दिखाया था। लिखा है स्तिफनस को जब कटहरे के अंदर खड़ा किया तो उन्होंने देखा कि इसका चेहरा तो फरिश्ते का सा है। वो मार्केट से फरिश्ते का मास्क लेके आया था, मुंह पे लगा लिया था उसने छुप के कि देखो मैं फरिश्ता हूं। लोगों को नजर आया इसका चेहरा तो फरिश्ते का सा है। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये वो तालीम है जो स्तिफनस के अंदर थी। ये वो जलाल है जो उसके अंदर से बाहर आ रहा था। ये खुदा की वो हुजूरी और खुदा की कुदरत है जो उसके अंदर से बह रही थी। तुम्हारे अंदर से आबे हयात की नदियां जारी हो जाएं। वो नदियां कहां हैं? वो सोते कहां हैं? सोता ही नहीं अंदर यीशु जिससे नदियां फूटनी है। तो जब सोता ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है नदी का, तो नदी का कोई वजूद ही नहीं। सूखे मसीही, कोई फल नहीं। यीशु मसीह फल दूर से देख के आया दरख्त, वो शागिर्द भी साथ, बड़ा हरा भरा था, हालेलुया हालेलुया कर रहा था, प्रेज द लॉर्ड, गैर जुबाने भी बोल रहा था वो दरख्त। लेकिन जब पास गए तो फल था ही, खालम खाली, पत्ते ही पत्ते। दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। तो सूखा भी नहीं, उसके अंदर फल ही नहीं था, सिरे से फल नहीं था। तो खुदा यीशु मसीह ने उस पर लानत की और वो सूख गया, उसके पत्ते भी सड़ गए। जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ थोड़ा सा है वो भी ले लिया जाएगा। तो पौलुस रसूल ने कहा मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हो। ये वो चैलेंज है जो खुदा का पाक रूह मेरे और आपके सामने रख रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जो आखिरी पैगाम हमने पादी साहब का सुना था, उसके अंदर उन्होंने आखिरी बात एक बड़ी खूबसूरत की थी इब्रानियों के खत में से, तुम उनके अंजाम पर गौर करना। जब मैं और आप इस जमीन से रुखसत होंगे, क्या हम ईमान की हालत में रुखसत होंगे या लोग दिखावे के तौर पर कह रहे होंगे बड़ा अच्छा बंदा है। दुनिया का बुरा तरीन आदमी जब वो जनाजा बन जाता है, डेड बॉडी बन जाता है, फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा आगाज तो बहुत अच्छा है, क्या हमारा अंजाम भी अच्छा होगा? हमें अपने इस ईमान को आखिरी पल तक थामे रहना है, लूज नहीं करना। दुनिया की रुकावटें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। पादी इस्कियल साहब का एक गीत मुझे फिर याद आ गया, ये आंधियां और ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। ये तारीकी, जुल्मत के साए, जुल्मत के डार्क बादल, डार्क क्लाउड्स, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे। शैतान इतनी तारीकी फैला देगा आपके रास्तों में, हमारे रास्तों में, कि हमें रास्ता देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी हालत में अगर खुदा का कलाम हमारे सीनों के अंदर जल रहा होगा, खुदा के पाक रूह की आग हमारे अंदर होगी, तो ये तारीकियां हमें गुमराह नहीं कर सकेंगी। हालेलुया, हम इन तारीकियों को चीर के निकल जाएंगे। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हमें अपने ईमान की तजदीद करनी है। हमें अपने आप को देखना है हम कहां खड़े हैं। क्या हम लोगों की आंखें खोल रहे हैं? क्या हम उन्हें तारीकी से निकाल कर रोशनी में ला रहे हैं? क्या हम उन्हें शैतान के इख्तियार से निकाल कर मसीह की तरफ ला रहे हैं? क्या हम उन्हें तौबा करवा रहे हैं कि वो अपने गुनाहों से फिर कर मसीह की तरफ आ जाएं? और क्या वो हमारे साथ मिरास में शामिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो फिर आज के चर्च को सोचने की जरूरत है। आज चर्च का ध्यान मनादी से हट चुका है और चर्च का ध्यान बिल्डिंग्स की तरफ है, टैलों की तरफ है। गुसलखाने के अंदर टैलें लग गई हैं, गुसलखाने के अंदर शावर लग गया है, गुसलखाने के अंदर एग्जॉस्ट फैन लग गया है, और बेंचों के ऊपर पहले खाली बेंच थे, वो चुभती थी, वो बेंच चुभते थे, इजी नहीं थे बैठने के लिए, अब वहां पर गद्दे लगा दिए ताकि आप आए और आते ही सो जाए, इजी होके सोएं। चर्च आपको फुल फैसिलिटीज मुहैया करेगा ताकि आप वहां पर आके आराम फरमाएं। आज की कलीसिया इस तरफ जा रही है, किसी को किसी का कोई पता नहीं है, कौन कहां पर है, कौन किस तकलीफ में है, मैंने किसके लिए दुआ करनी है, कोई पता नहीं। हमें सिर्फ अपना पता है और हम अपनी ही जात की चार दीवारी के अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। हम वो मसीही। आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर कलीसियाओं को क्या चीज सिखाई जाती है? उन्हें बैरूनी ममालिक के अंदर जो कलीसियाएं तकलीफ उठा रही हैं उनकी बाबत बताया जाता है। हमें यह नहीं पता कि लाइनों पार चर्च के अंदर जो ईमानदार हैं उनके मसाइल क्या हैं। सर्दमोहरी है हमारे अंदर, रिश्तों के अंदर सर्दमोहरी है, और मसीही मामलात के अंदर भी हम ऐसे ही। आज खुदा हमसे तकाजा करता है कि हम अपने आप को छटकें, जैसे ठंडा पानी मग्गे का फेंकते हैं अपने ऊपर, होता है आपके साथ कभी ऐसा? एकदम तन बदन हिल जाता है। आप भी अपने आप को हिलाएं। आज कलाम का पानी फेंकें अपने ऊपर और एक दफा आपको हिलजुल होगी और उस हिलजुल के अंदर आप हिल जाएंगे, उठ जाएंगे।
بیدار ہو جائیں گے. ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں خالی آپ کو نہیں کہہ رہا, میں پادری صاحب کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں تمام کلیسیا سے مخاطب, جو کلیسیا پاکستان ہے. آج پاکستان کے اندر خدا بڑی بیداری لانا چاہتا ہے, لیکن وہ بیداری باہر سے کوئی نہیں لے کے آئے گا, وہ میں اور آپ لے کر آئیں گے. پریز دی لارڈ. اس بیداری کا آغاز مجھ سے ہوگا, آپ سے ہوگا, ہم سے ہوگا. تو کیا آپ اس بیداری میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ محض اس جگہ پر آ کر دعا کر لینے سے بیداری نہیں آنی. سن لیں, اے خداوند بیداری بھیج, اے خداوند بیداری بھیج, اے خداوند بیداری بھیج. آپ بینک کے آگے کھڑے ہو جائیں اور بورڈ لے لیں اپنے ہاتھوں میں, ہمیں پیسے دیں, ہمیں پیسے دیں, ہمیں پیسے دیں. وہ کہیں گے بگاؤ ان لوگوں کو, ان کے تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ, یہ کیا کرنے آ گئے ہیں آپ؟ ہمارا کوئی کھاتا پیچھے ہے نہیں اور بیداری ہم مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو لنک اپ کرنا ہوگا خدا کے ساتھ, ری جوائن کرنا ہوگا دوبارہ سے مسیح کی اس محبت میں, میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بیداری کی بڑی بڑی لہریں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, ہم سب نے, اور اس طرح سے پاک روح کا بہاؤ دیکھا ہے کہ لوگ چینج ہو رہے ہیں, لوگ بدل رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن اس کا تعلق, بیداری کا تعلق خدا سے ہے, اور جب ہمارا تعلق خدا سے ہٹ جاتا ہے تو بیداری بھی ختم ہو جاتی ہے. آج ملک پاکستان کے اندر خدا خادمین کو اٹھائے گا, لیکن کلیسیا کی دعاؤں سے, ایمانداروں کی دعاؤں سے, اور لوگ برپا ہوں گے اور وہ انجیل کی بشارت دیں گے, اور اس زور اور شور سے بشارت دیں گے جس کا بائبل مقدس ہمیں ثبوت دیتی ہے. کیا آپ ایسی منادی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد, اپنے محلوں میں؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسا ہو کہ خادم جائیں, بیمار گلیوں میں پڑے ہوں, ایسے ہاتھ رکھیں, بیمار اٹھ کے کھڑے ہوں, ہر جگہ پر مسیح کا ڈنکا بج جائے؟ کیا آپ کے اندر یہ خواہش ہے؟ اگر یہ خواہش ہے تو اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے ساتھ چلنا ہوگا, ہمیں اپنی سلیب اٹھانی ہوگی, ہمیں دعا کرنی ہوگی, ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہوگا. ایک دعا جو ہے اعمال کی کتاب نہیں ہے, میں اسے پڑھ کے اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. شاگردوں کو پکڑا گیا اور انہیں دھمکایا گیا کہ تم مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرو. انہیں مارا بھی گیا, دھمکایا بھی گیا, ڈرایا گیا, ہر ایک اعتبار سے انہیں اس طرح سے انہوں نے تکلیف پہنچائی کہ وہ اپنے ایمان کا انکار کریں, اور دوسرے لوگوں کو بھی جا کر بتائیں کہ بھائیو تمہاری مہربانی, یہ منادی چھوڑ دو, بس اندر اندر ہی دعا کر لیا کرو. دیکھیں انہوں نے کیا دعا کی. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. دعا کیا کر رہے ہیں کہ خداوند تو ان کو خود ہی دیکھ, ہمیں یہ دلیری دے کہ ہم تیرا کلام دلیری سے سنائیں, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا, اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. ہاللیلویا. مکان کب ہلتے ہیں؟ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں, اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا پریئر میٹنگ کے اندر لوگ ہی نہیں ہوتے. جس چرچ کے اندر پریئر میٹنگ ہوتی وہاں پہ چرچ خالی, صرف لوگ اتوار کو آتے ہیں, یا کسی شفائیہ عبادت میں ڈھیر لگ جاتا لوگوں کو, اس میں پانی کی بوتلیں, تیل کی بوتلیں, رومال, چادریں, موم بتیاں بند بھر جاتے ہیں. اسٹیج کے آگے اتنے بندے نہیں ہوتے جتنی بالٹیاں پڑی ہوتی ہیں پانی کی, تیل کی. ریزن یہ ہمیں صرف شفا چاہیے, ہمیں شافی سے کوئی غرض ہی نہیں. شفا مل جائے تو پھر شافی کون تیسی کون. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا چاہتا ہے کہ آج ہم ایسی دعائیں کریں کہ اے خداوند ایسے خادم برپا کر جو تیرا کلام دلیری سے سنائیں, جو صرف تیرے خوف میں چلیں. اے خداوند ہمیں دلیری دے کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں لوگوں کے سامنے, ہم اپنے ایمان سے پھر نہ جائیں. یہ بھی نہیں اس کا مقصد کہ آپ ہر کسی سے جا کے پنگا لے لیں, اوے میں مسیحی ہوں, میں مسیحی ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں, یہ بے وقوفی ہے. آپ اپنی مسیح لائف کو دکھائیں لوگوں کو. یہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کا بڑا فخر فیل کرتے ہیں, بٹن کھول لیتے ہیں, آگے سلیپ لٹکا لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ کہیں گے وہ سائی جا رہا ہے, وہ دیکھو. یہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں گا, اس کو ختم کروں گا. میرے گھر کے نیچے ایک دکان کھولی. اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات. آج کل مچھروں کا سیزن ہے تو کوائل لوگ خرید رہے ہیں. تو ایک کوائل کے اندر 2 کوائل ہوتے ہیں, آپ کو پتا, جڑے ہوتے ہیں. وہ جلیبی جسے کہتے ہیں, جلیبی کے اندر ایک جلیبی ہوتی, 2 جلیبی ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 10 پیسز. اس پیکٹ کے اوپر اس کے اندر ہوتے 5 ہیں, کیونکہ ایک کے اندر 2 ہیں. آپ اس کو ایسے علیحدہ کریں تو وہ 2 نکل آتے ہیں. مطلب انہوں نے 5 پیکٹ کے اندر 10 پیس رکھے. اب وہ اس کے پاس لوگ آنے لگے, محلے دار ادھر ادھر سے. انہوں نے کہا جی کوائل دو, 2 کوائل دے دو. نیا دکاندار تھا, اس کو پتا نہیں تھا. اس نے 2 پیکٹ نکالے, 2 پیس, مطلب وہ 4 تھے. لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ اسے تو پتا ہی نہیں ہے, لوگ اس سے خریدتے رہے. اس نے پیکٹوں کے پیکٹ کہنا ہے شہزاد صاحب میں بڑا پریشان آ کے اتنے 10 لکھے تھے, اندروں 5 نکل دیں. جب میں اس سے لینے کے لیے گیا تو میں نے کہا جی آپ مجھے دے. اس نے کہا جی میرے پاس وہ کوائل نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا چلے یہ دے دیں, میں پھر مارکیٹ سے جا کے لے آؤں گا. تو میں نے کہا 2 دے دیں. تو اس نے مجھے 2 دے دیے. میں نے کہا جی یہ 2 نہیں ہے تو 4 ہیں. کہتا جی کیسے 4 ہیں؟ میں نے کہا 4 اس لیے کہ 2 اسی کے اندر, ایک کے اندر 2 ہیں. کہنے لگا لو جی پورے محلے چ تسی نکلے جے وہ بندے جنہیں مینوں دسیا. کہتا ورنہ لوگ 10 روپے کا میرے کو لے جا رہے ہیں, ٹھگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا یار میں مسیحی بندہ ہوں, میں پادری ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں تیرا نقصان نہیں کراں گا, میں تیرا فائدہ کراں گا. چھوٹی سی بات ہے.
لیکن اس سے میں نے اپنے ایمان کا اظہار اس کے سامنے کر دیا کہ میں ایماندار آدمی ہوں، مسیح ایماندار ہوتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے اس طرح سے مسیح کا پرچار کرنا ہے، سلیبیں لٹکا کر، کانوں کے اندر کوکے ڈال کے، اس کے نیچے سلیب لگا کر، بالوں کو 2 رنگ کا کر کے، کئیوں نے سلیبوں کی کٹنگ کرا لی ہے۔ ادھروں بھی اس نے پچھلے دنوں میں ایک لڑکا میں نے دیکھا ہے، کالے اس کے بال ہیں اور اس کے سینٹر میں یہاں پہ براؤن کلر کی سلیب بنی ہوئی، ویسے ایسے پھر رہا، لوگ اس کو دیکھنے کے سر تے سلیب بنائی۔ یسوع نے کہا تھا اٹھانا کندھے پہ، انہیں سر تے پا لی۔ ایسے مسیحی نہ بنے جس سے مسیح کی تحقیر ہو، ہمیں ایسے مسیح بننا ہے جو مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔